ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 2 ઓગસ્ટ 2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो. सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ. તો બાબા જેવી રીતે અપકારીઓ પર ઉપકાર કરે છે. અપકારીઓ પર ઉપકાર એટલે કે બાબા માટે, ભગવાન માટે લોકોએ કેટલી ગ્લાનિ કરી કે ભગવાન સર્વવ્યાપી છે, કુત્તે બિલ્લી ઠીકર ભીતર બધાની અંદર ભગવાન છે. તો ભગવાન માટે ઘણાએ અપશબ્દો આપણે બોલ્યા, છતાંય પરમાત્મા શું કરે છે? સર્વ મનુષ્ય આત્માઓના કલ્યાણનું કાર્ય કરે છે. બાળકોએ ભલે ગાળો આપી, અપશબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો, પરંતુ પરમાત્મા તો બાળકો માટે કલ્યાણકારી બનીને સેવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો બાબા કહે છે તમે પણ શું કરો? ફોલો ફાધર કરો, સુખદાયી બનો, હરેકને સુખ આપો, इस देह को भूलते जाओ. प्रश्न: देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? જે આત્મા અભિમાની સ્થિતિમાં રહે છે એવા બાળકોની મુખ્ય નિશાનીઓ કઈ હશે? उत्तर: उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा. કારણ કે દેહી અભિમાની સ્થિતિ છે, આત્મા અભિમાની સ્થિતિ છે. તો જ્યાં દેહ અભિમાન નથી તો લડાઈ ઝઘડા બી નહીં હોય. तो बाबा कहते उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा. वे कभी एक दो की खामियों का, कमियों का वर्णन भी नहीं करेंगे. वे बहुत बहुत सुखदायी होंगे. उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे. कभी मतभेद में नहीं आएंगे. हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे. उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे. वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे. उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा. તો કેટલી પોઈન્ટો બતાવી? 7 પોઈન્ટ બતાવી છે. આત્મ અભિમાની સ્થિતિમાં જે રહેતા હોય એવા બાળકોની મુખ્ય 7 નિશાનીઓ બતાવી. તો પહેલું કહ્યું કે આપસમાં ખૂબ જ પ્રેમથી રહેશે, આત્મિક પ્રેમથી એકબીજા સાથે વ્યવહાર કરશે. બીજું, એકબીજાની ખામીઓનું વર્ણન નહીં કરે, એકબીજાની ખામીઓ નહીં જુએ, હરેક માટે સુખદાયી હશે. એમની ખુશી ક્યારે ગાયબ ના થાય, કારણ કે આત્માભિમાની સ્થિતિમાં રહે છે. સદૈવ અપાર ખુશીમાં રહેશે, ક્યારે મતભેદમાં નહીં આવે. હર વખત આત્મા આત્મા ભાઈ ભાઈની દ્રષ્ટિ પાકી હોવાથી, એ સ્મૃતિ હોવાથી, ભાઈ ભાઈની સ્મૃતિ હોવાથી એ ગુણગ્રાહી હશે, હરેકના ગુણોને ગ્રહણ કરવાવાળી આત્મા હશે અને એને હરેકની અંદર ગુણ જ દેખાશે. એ ખુદ બી ગુણવાન બનશે અને બીજાને બી ગુણવાન બનાવવાની સેવા કરશે. જે આત્મા અભિમાની સ્થિતિમાં રહે છે એવા બાળકો હર હંમેશ એક બાપને જોશે, બાબા સિવાય એમને બીજું કોઈ દેખાશે નહીં અને યાદ બી નહીં આવે. ओम शांति. ऊंच से ऊंच बेहद के बाप के सन्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो. આપણે કોની સન્મુખ બેઠા છે? ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्माની સન્મુખમાં બેઠા છીએ. तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है. तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो. જ્ઞાન રત્નો સે જોલી ભરને કમાઈ કરને. આપણે જ્ઞાનના સાગર પરમાત્માની પાસે આવ્યા છે જ્ઞાન રત્નોથી જોલી ભરવા માટે, ઊંચી કમાણી કરવા માટે બાબા કહે છે કે તમને ભગવાન મળ્યા તો તમે કેટલા ભાગ્યશાળી છો. बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं.
बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद नहीं करना है। बाबा तो हर घड़ी हर पल बाबा કહે છે હું તમને જોઉં છું, બીજા કોઈને યાદ કરતો નથી। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। किनकी आत्मा को? ब्रह्मानी आत्मा। ब्रह्मानी आत्मा शिव बाबाने याद करे છે, પણ शिव बाबा तो કોઈને નથી याद करता, खाली બાળકોને याद करे છે। तो बाप कहते हैं हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। બ્રહ્મા બાબા બી કહે છે કે હું શિવ બાબાની સાથે સાથે બાળકોને જોઉં છું, કારણ કે સાથે સાથે રહું છું, એમનું બાળક છું અને એમને મને નિમિત્ત બનાવે છે, તો હું શિવ બાબાની સાથે સાથે हरेक बालक ने જોઉં છું। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाबा કહે છે બધું જ ઠીક છે, પરંતુ પહેલાં શું કરવાનું છે? દેહ સહિત બધું જ ભૂલી જાઓ। દેહના સંબંધો, દેહની સાથે સંકળાયેલી વસ્તુઓ, પદાર્થો, જગ્યા, સ્થાન, પ્રોપર્ટી, જે પણ શરીર સાથે સંકળાયેલું છે બધું જ ભૂલવાનું છે। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। बाबा શું સમજાવે છે? પુરુષાર્થ કરો। કઈ વાતનો? શરીર સહિત શરીરની સાથે સંકળાયેલા સંબંધો, શરીરની સાથે સંકળાયેલી વસ્તુઓ, શરીરની સાથે સંકળાયેલી જે જગ્યા છે બધું જ ભૂલવાની મહેનત કરવાની છે। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, સુખદાયી બનો। જેવી રીતે પરમાત્મા અપકારીઓ ઉપર બી ઉપકાર કરે છે, તો બાબા કહે છે એમાં ફોલો ફાધર કરો, સુખદાયી બનો। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं, आपसમાં ક્યારે લડાઈ ઝઘડો નહીં કરો, એકબીજાને સુખ આપો। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। कई मेहनत करवानी, बस एक बाप सिवाय कोई याद न आवे एना माटे आ शरीर ने भूलता जाओ। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। जाने जीवता जीवत मरी गया एवी स्थिति बनावानी छे, एक परमात्मा सिवाय बीजा कोईनी याद आवे नहीं। कहते भी हैं आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है, शरीर का भान उड़ाते रहो। बाबा કહે છે આપ મુએ મર ગઈ દુનિયા, તમે મરે તો બધું જ મરી ગયું। હા, જાણે કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે તો એની પાછળ ખબર હોય છે કે લોકો શું કરે છે, રડે છે, કૂટે છે કે શું કરવાના। મરી ગઈ એટલે આપણે તો આ શરીર છોડી દીધું ને, બધું પૂરું થઈ ગયું। તો બાબા કહે છે જીવતા જીવત એવી સ્થિતિ બનાવવાની છે, શરીરના ભાનને ઉડાવી દેવાનું છે। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो, सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बाबा કહે છે શરીરના ભાનને ઉડાડવા માટે શું કરવાનું? એકાંતમાં બેસીને આત્મચિંતનનો અભ્યાસ કરો, એકાંતમાં પોતાની સાથે વાતો કરો। बहुत उकीर से बाप को याद करो, उकीर माना उमंग से, उमंग उत्साह थी बाबा ने याद करो। बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। एवा उमंग उत्साहમાં આવી જાઓ, બાબાને એટલું યાદ કરો કે બાબા બસ તમારી ગોદમાં સમાઈ ગયા। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। एकांत कोने કહ્યું? એકની યાદમાં આ શરીરનો અંત થઈ જાય એવી અવસ્થા બનાવવાની છે કે જ્યારે પણ આ શરીર આત્મા છોડે
ત્યારે બસ मन बुद्धि ની अंदर दिल में बाबा समाયેલા હોય। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाएगी। बाबा ने याद करता करता आ शरीर रूपी चमड़ी ने छोड़ी देवानी छे। एवी बाबानी पाकी याद करो कि जल्दी जल्दी कर्मातीत अवस्था बने, अने कर्मातीत अवस्था बने तो जल्दी जल्दी आ शरीर छूटी जाए। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। हाँ, कलयुगी दुनिया, पतित शरीर जल्दी जल्दी खत्म थवानुं ज छे। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। कारण के अंतिम समय छे ने, हवे अंतिम समय में विनाश तो थवानुं छे, पण एना पहला पुरुषार्थ करवा माटे जे थोड़ोक समय छे। तो बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेंगी? बाळक बाबा ने पूछे ने, बाबा आ पढ़ाई क्या सुधी चालशे? तो बाबा शू कहे छे? बाबा कहते जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। क्या सुधी आ ज्ञान चालशे? ज्यां सुधी देवी स्वराज्यनी स्थापना नथी थई त्यां सुधी आ ज्ञान चालशे। અને જ્યારે દેવી સ્વરાજ્યની સ્થાપના થઈ જશે તો બાબા કહે છે તમે લોકો સતયુગમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશો, પછી આ જ્ઞાન આપવાનું કાર્ય બાબા પૂર્ણ કરી દેશે। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी है। बाबा कहे छे बीमारी आवे, शरीरना कर्म भोग छे तो ए तो चालता रहेवाना, कारण के शरीर तो जूनू जड़जड़ीभूत अवस्था वालू छे, एटले ए तो थवानुं ज छे। तो बाबा कहे छे एमां उम्मीद ना राखो कि बाबा मदद करशे। देवाला निकाला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाबा कहे छे शारीरिक बीमारी आवी, चाहे धंधामां नुकसान थयुं, ए तो आपणा हिसाब किताब छे, आपणा कर्मोनुं फळ होय छे। बाबा कहे छे एमां बाबा कोई कृपा, आशीर्वाद, दया नहीं करता, पण जो तमे मेहनत करो छो बापनी यादनी तो एमां मदद मळती होय छे, परंतु डायरेक्ट बाबा कोई कृपा करता नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। जेटलू बने एटलू बाबा ने योग करो, बाबा ने याद करो, योग बलनो प्रयोग करो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। भक्ति मार्ग में भगवान माटे शू कहीए छे? हे प्रभु मुझे पलकों में छिपा लो। प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं ना। जे कोई प्रिय व्यक्ति होय तो एनी चिट्ठी में शू लखे? नूरे रत्न माने आंखोना तारा, प्राण प्यारे माना जीवथी वाला। तो यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। तो बाबा तो अपना प्रिय छे न, उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बाबा कहे छे एवो प्रेम राखो मारी साथे कि बीजा कोई साथे ए प्रेम नहीं। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलके कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। बाबा कहे छे कोई मारी स्थूल आंखों छे ज नहीं के पलकों में छिपाऊं, परंतु मारा दिलनी अंदर, मारा अंदर तमने समावी लઉં છું। तो बाबा कहे छे आ तो बुद्धिनी वात छे। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। शिव बाबा ज्ञानना सागर, सुखना सागर, प्यारना सागर छे। तो ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। तो एवा प्रेमना, ज्ञानना, सुखना सागर छे, जे गुणोना दाता छे। तो एवा
परम प्यारा परमात्मा साथे આપણો प्यार કેટલો હોવો જોઈએ। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं, बाबा कितनी सेवा करे छे। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं, कितना मीठा बाबा है। कितना निरअहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। बाबा कितना निरअहंकारी बनीने अपनी सेवा करी રહ્યા છે। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी है। बाबा आवे छे साधारण तननी अंदर, पतित दुनियानी अंदर अने विकारी शरीरनी अंदर, पतित शरीरनी अंदर प्रवेश करीने हरेक आत्माओનું કલ્યાણનું કાર્ય કરે છે। तो बाबा जेवी सेवा करो, जेवी रीते बाबा निरअहंकारी बनीने सेवा करे छे। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। बाबा कहे छे श्रीमत पर चालो, परंतु श्रीमतमां आपणी मत उमेरी तो अपना भाग्यमां लकीर लागी जाए छे। तुम बच्चों को आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। बाबा कहते हैं आपस में रूहानी प्रेम राखो, परंतु शरीरનું અભિમાન આવી જાય છે એટલે रूहानी प्रेम रहतो નથી। तो શું करे, एक दो की खामियां निकालते रहते हैं। फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। बाबा કહે છે જ્યારે તમે સત્યુગી દુનિયામાં હતા, દૈવી ગુણોથી સંપન્ન હતા, આત્મ અભિમાની સ્થિતિમાં હતા, ત્યારે કોઈની ખામીઓ નહોતા निकालता। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। जे आपस में प्रेम હતો, સતયુગમાં એકબીજા સાથે રહેતા હતા, તો બાબા કહે છે હવે એવી અવસ્થા બનાવવાની છે। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई। देह अभिमान में आव्या तो दुखदायी बन्या, तो जे अपनी आत्मिक खुशी हती, आत्मिक नशो हतो, ए गायब थई गयो। लाइफ भी छोटी हो गई ना, कहीं खुशी जती रही तो जीवन भी छोटू नानी थई गયું, आयुष्य भी ओछू थई गયું। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएंगी। तो बाबा कहे छे जेटलू मने याद करता रहेशो एटली तमारी अंदर जे खामी छे, कमी कमजोरी छे, अवगुण छे, बुराईओ छे, ए बधुं निकळतुं जशे। मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे हम भाई भाई हैं। શું કયો પાઠ પાકો કરવાનો છે? આપણે આત્મા આત્મા ભાઈ ભાઈ છીએ। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। आत्मा आत्मा भाई भाई जोईशु तो एक बीजाना गुणों देखाई आवशे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। શું કરવાનું છે? કયું કર્તવ્ય કરવાનું છે? સંગમ યુગમાં અવગુણોને છોડી સદગુણોને धारण करवाना। तो बाबा कहते कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते। हरेकनी अंदर कई ने कई कमी कमजोरी तो है, कारण के कळयुगी प्रभाव भी एक बाजू है, एक बाजू हजी संगम युगना बाबाना बाळको बनी रह्या छे, परंतु थोड़ी घणी खामी तो हजी छे। तो कोई कोई में, तो बाबा कहे छे कोई कोई में तो ऐसी खामी है जो खुद समझ नहीं सकती। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। पोतानी अंदर क्यांक ने क्यांक खामी होय छे, जेना कारणे उल्टा बोल निकली पड़े छे।
सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। बाबा શું કહે છે? પોતાને જુઓ, સ્વયંનું ચેકિંગ કરો કે આપણે કેટલા મીઠા બન્યા છીએ। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटका रहे। શું કહ્યું બાબાએ? બાબા સાથે એટલો રૂહાની પ્રેમ હોવો જોઈએ, એટલો નશો હોવો જોઈએ કે બસ બાબા સાથે જ રહીએ। बाबा आप हमको कितना उच्च समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना है। अंदरों अंदर बाबा की महिमा करो कि बाबा आप कितने ऊंचे हो, कितने ऊंच परम धाम से आए हो। हम बच्चों के लिए, हम तो पतित विकारी तमोगुणी बन गए थे, आप ऐसी दुनिया में आए छी कि जहाँ गंध थी, और आकर हमको इतना ऊंच देवता बनाते हो। तो गदगद होना चाहिए, रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी है ना खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा કહે છે રૂહાની ખુશી માંગ રહો, કારણ કે ખુશી જેવી કોઈ ખોરાક હોતી નથી। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। संगम युग पर बाबा आवीने एटલું ઊંચું જ્ઞાન આપે છે કે એ જ્ઞાન દ્વારા આપણે 21 જન્મો માટે સદૈવ ખુશમાં રહેવાની ખોરાક પ્રાપ્ત કરી લઈએ છીએ। કારણ કે આ જ્ઞાન છે તો જ્ઞાન લઈએ છીએ, પુરુષાર્થ કરીએ છીએ, મહેનત કરીએ છીએ તો 21 જન્મો માટે સતયુગી વારસો પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ। तो बाबा कहते फिर कोई को किस बात की चिंता नहीं रहती है। कभी कितनी चिंताएं हैं, इसीलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। क्यारेक क्यारेक चिंताओं करी लिए तो શું થાય? चिंताओनी असर शरीर पर આવી જાય, शारीरिक बीमारीओना रूपમાં। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं करनी है। यह खुशी की खुराक तुम एक दो को खिलाते रहो। बाबा કહે છે કોઈ પણ વાતની ચિંતા નહીં કરો, બસ એકબીજાને ખુશીની ખોરાક આપતા રહો। एक दो की यह जबरदस्ती खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकती। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिर करते हो। खुश खैराफत भी यह है किसी को बाप का परिचय देना। कोई આપણને મળે, કોઈ મહેમાન છે, આપણા ઘરે આવ્યા છે, તો આપણે ખુશ ખૈરાફત પૂછે ને, કેમ છો, મજામાં છો, તબિયત સારી છે? તો બાબા કહે છે ખુશ ખૈરાફત એટલે શું? દુનિયામાં આ રીતે પૂછવાની સિસ્ટમ છે, પરંતુ બાબા કહે છે કોઈને પરમાત્માનો પરિચય આપવો, સાચા અર્થમાં એ છે ખુશ ખૈરાફત પૂછવી। यह ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मनमना भव मध्याजी भव। कौन सी खुराक आपे छे अपना सर्जन, अपना डॉक्टर? एक छे मनमना भव, मध्याजी भव। बस 2 वर्षन्स की ही तो ये खुराक है। 2 शब्दों ज आ खुराक छे। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़ी ही है। परमात्मा पासेथी विश्वनी बादशाही लई रह्या छे, आ थोड़ी कोई ओછી વાત છે। यह 2 वचन ही नामी ग्रामी है। कौन से 2 वचन? मन मना भव, मध्याजी भव। इन 2 वचनों से ही तो तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण कर हर्षित रहना चाहिए। तो बाबा आटલું ઊંચું જ્ઞાન આપે છે, તો જ્ઞાનની હરેક પોઈન્ટનું મનન ચિંતન કરો અને પોઈન્ટનું મનન ચિંતન કરતાં કરતાં ખુશ મોજ મારો।
गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पહોંચાઓ। कौन सा रूहानी खुराक? આ જ્ઞાન અમૃત રૂપી જે બિંદુઓ છે, તો આ જ્ઞાન અમૃત હરેક સુધી પહોંચાડો, કારણ કે આ ખોરાક હશે તો જ હરેક આત્માઓ ખુશમોજમાં રહી શકશે। एक दो की उन्नति करो, टाइम वेस्ट न करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसा बनाओ, कारण કે સમયને પહેલા ઓળખો અને સમયને ઓળખી પરમાત્માને ઓળખો અને પરમાત્માને ઓળખીને પછી ધીરજથી, ગંભીરતાથી, સમજની સાથે બાબાને યાદ કરો તો પોતાનું જીવન હીરા તુલ્ય બની જશે। मीठे बच्चे बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा શું કહે છે? મીઠા બાળકો બાબા જે શ્રીમત આપે છે એમાં कोई गफलत करवानी नहीं। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। બાબાનો સંદેશ હરેકને પહોંચાડવાનો છે। મેસેજ बहुत सहज है। બાબાનો મેસેજ તો સરળ છે, પરંતુ હરેક સુધી પહોંચાડવો તો પડશે। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा કોઈ બી બુરા કર્મ નહીં કરો। બાબાનો સંદેશ કયો છે જે હરેક સુધી પહોંચાડવાનો છે? પોતાને આત્મા સમજી પરમાત્માને યાદ કરો અને આ શરીરરૂપી કર્મેન્દ્રિયો દ્વારા મનસા વાચા કર્મણા કોઈ પણ પ્રકારનું ગલત કાર્ય કરવાનું नहीं। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। हाँ, बाबा कहे छे કે જ્યારે હરેકને તમે આ સંદેશ આપશો અને અંતમાં સાયલેન્સ બલનો એટલો આવાજ પ્રસારિત થશે, કારણ કે સાયલેન્સની શક્તિ એટલી ફેલાશે કે દિવસે ને દિવસે આપણી ઉન્નતિ થતી જશે, બાબાનું નામ રોશન થતું જશે। હરેક આત્માઓ સમજશે કે હા, આ સંસ્થા સારું કાર્ય કરી રહી છે, જે હરેકને જ્ઞાન આપે છે, જ્ઞાન દ્વારા હરેકને પોઝિટિવ मार्ग मળી રહ્યો છે। तो यह ब्राह्मणों का जाड़ बहुत बढ़ता जाएगा। प्रजा बनती रहेंगी। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होंगी। बाबा કહે છે દિવસે ને દિવસે સેન્ટરો વધતા જશે, પ્રદર્શનીઓ થતી જશે, પાઠશાળાઓ ખોલતી જશે। बाबा કહે છે प्रजा भी बनती जैसे। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। दिवसे ने दिवसे नवा नवा सेंटरो खुलता जશે, જેમાં એક એક આત્માઓ આવતી જશે અને પોતાનું જીવન હીરા તુલ્ય बनावता जैसे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहा किसी बिचारे के पैर खिसक न जाए। बाबा કહે છે એક એક આત્માઓ આવશે જેમનું જીવન આપણે હીરા તુલ્ય બનાવવાનું છે, તો એટલી પ્રેમથી સંભાળ કરો હરેકની કે એમના પેર ખિસક ના જાય, માના ફરીથી માયાના પ્રવાહમાં વહી નહીં જાય। जितने जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जीदान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे। अंत समय एवो आवशे
કે બાબાના નામનો જે જેકાર ચારે દિશાઓમાં હશે, આપણી સંસ્થાનું નામ ચારે દિશાઓમાં ફેલાશે, ત્યારે લોકો बुलावશે कि हाँ यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होंगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। આગળ જતાં એ ધૂમધામ થશે, પરમાત્માની જય જયકાર થશે કે હા, લોકો જેમને શોધી રહ્યા છે, જેમને ભગવાન, પરમેશ્વર, અલ્લાહ, ગોડ, ઈશ્વર કહીને બોલાવે છે, એ ભગવાન આબુમાં અવતરિત થયા છે। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोले हैं અને આંતરરાષ્ટ્રીય ઝઘડાઓ ઘણાએ ચાલતા હોય છે। अब यह सभी रोले खत्म होने हैं, इसके तुम्हें कोई भी फिक्रात नहीं करनी है। અંદરો અંદર જે રાષ્ટ્ર વચ્ચે, દેશ વચ્ચે જે લડાઈ ઝઘડા ચાલે છે, બાબા કહે છે હવે આ બધું ખતમ થઈ જવાનું છે, તમારે એ વાતોની ચિંતાઓમાં નથી પડવાનું। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो, જે થવાનું છે તો થવાનું છે, હરેકને સમજાવો કે આ બધાની ચિંતા नहीं करो। अब यह पुरानी दुनिया गई कि गई, इसमें मोह नहीं रखना है। હવે આ દુનિયાનો અંત જ છે। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। આ દુનિયામાં મોહ હશે તો બાબા કહે છે અંત સમય પછી ખુશી भी प्राप्त नहीं થાય। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। બાબા જ્ઞાન ધનનો ખજાનો આપી રહ્યા છે, કેટલો સર્વશ્રેષ્ઠ, તો ખુશી થવી જોઈએ ને। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। बाबा કહે છે કયો શોખ રાખો? યોગી બનવાનો અને એકબીજાને બનાવવાનો। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। बाबा કહે છે શરીરનું અભિમાન રહે છે, શરીરની અંદર મોહ છે, તો સમજો કે અવસ્થા કચ્ચી છે। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं, इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। જે આત્માભિમાની બાળકો છે એ જ ડાયમંડ બની શકે છે, હીરા તુલ્ય બની શકે છે। માટે બાબા કહે છે જેટલું બને એટલું આત્માભિમાની બનવાની મહેનત કરો, અભ્યાસ કરો। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान निरअहंकारी बन, बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। બાબાની જેવા નિરઅહંકારી બની હરેકની પ્યારથી સેવા કરો। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। બાબાની શ્રીમત પર ચાલો, અને અગર આપ પોતાની મત પર ચાલ્યા તો આપણા ભાગ્યમાં આપણે આપણી લીટી જ ખેંચી નાખી। संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। संगम युगમાં બાબા જે ખુશીની ખોરાક આપે છે જ્ઞાન ધન દ્વારા, તો બાબા કહે છે ખોરાક ખાતા જાઓ ને બધાને ખવડાવતા જાઓ। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान,
मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब भी कर सकते हैं। सेवाधारी सेવામાં સફળતાની અનુભૂતિ ત્યારે કરી શકે જબ મેંપન કા ત્યાગ હો, જ્યારે હું પણાનો ત્યાગ થશે ત્યારે જ સેવામાં સફળતાની પ્રાપ્તિ થશે। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। હું સેવા કરું છું, મારા દ્વારા સેવા થઈ રહી છે, હું હોય તો જ સેવા થાય, તો બાબા કહે છે આ ભાવનાનો ત્યાગ કરો। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। मैंपन बाप के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी। तो बाबा કહે છે મેંપનને બાબામાં લીન કર દો, હું નહીં બાબા। તો જે બાબાના પ્યારમાં લીન થઈ ગયા તો સેવામાં સદૈવ ખોયા રહેશે અને એ ત્યાગ મૂરત જ સાચા સેવાધારી બની શકે છે। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। हम कौन है? हम तो निमित्त है ना। करण करावनहार करा रहा है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार नहीं हो सकते। बाबा કહે છે જે સાચા સેવાધારી છે એ મેંપનનો ના મોહતાજ હોતા નથી। स्लोगन व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने से आएंगी। बाबा કહે છે વ્યર્થને સમાપ્ત કર દો તો સેવાની ઓફર લોકો સામેથી કરશે કે આ સેવા કરવી છે, આમ કરી આમ કરી, પણ વ્યર્થ લઈને બેઠા તો સેવાની ઓફર આવતી નથી। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। संगम युग શું છે? જીવનની બધી જ આશાઓ પૂર્ણ કરવાનો સુહાવનો સમય છે। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होंगी ना। ઘણા જન્મોથી છેલ્લા 63 જન્મોથી તો આશા રાખી હતી કે જીવનમાં સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, તો બાબા કહે છે આટલા જન્મોની આશા ક્યારેક તો પૂરી થશે। अब यह है हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के जन्म की भी अंत है। अंतिम जन्मना पण अंतिम समय से ऐसा कोई नहीं समझे मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। हाँ, बाबा કહે છે અત્યારે તો એમ નહીં સમજો કે હું નાનો છું, આ મોટું છે, નાનું મોટાને દુઃખ આપે છે કાં તો મોટું નાનાને દુઃખ આપે છે, એ સ્મૃતિમાં નહીં જાઓ। અત્યારે તો હરેકની આત્માની અવસ્થા એક સરખી છે। બાબા કહે છે પહેલાં સુખ જોઈએ તો એની સામે એ તો ચેક કરો કે દુઃખ ક્યાંથી મળે છે, એનું તો જ્ઞાન હોવું જોઈએ। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। तो जे 5 विकारों फसाया, जे कर्म बंधનમાં બંધાયા છે એને પરમાત્માની યાદથી, પરમાત્માની યાદ રૂપી योग अग्निથી भस्म करो। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिवान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। बाबा ने चालता फरता हरता श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है।
परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। उपाय तो परमात्मा बतावे छे, परंतु ए उपाय पर चालवानुं कर्म तो हर एक आत्मा ही करवानुं छे ने। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं। तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रालब्ध बनेंगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से पवित्र बनाए मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा 3 रूपમાં આવે છે, બાપ, ટીચર અને સદગુરુ। તો પિતાના રૂપમાં તો પહેલાં એમના સંપૂર્ણ બની જ જવાનું છે, પિતા કા હો ही जाना है। फिर टीचर, શિક્ષકનું કાર્ય છે જ્ઞાન આપવાનું। તો એ જ્ઞાન દ્વારા ભવિષ્ય જે 21 જન્મનો વારસો છે એ પ્રાપ્ત કરીને જન્મ જન્માંતરની પ્રાલબ્ધ બનાવી લેવાની છે। અને ગુરુના રૂપમાં ગુરુ શું કરે છે? પવિત્ર બનાવીને મુક્તિ આપે છે। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई दुनिया बनाने का। कयो समय છે? પુરાના બધા જ હિસાબ કિતાબ સમાપ્ત કરી દો, બસ નવી દુનિયામાં જવાની તૈયારી કરો। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा, फिर सारा कल्प चलेगा। बाबा के आ संगम युग एक एवो समय छे कि आ संगम युगमां पोताने एटलो पुरुषार्थ करी पोतानी आत्माने पवित्र बनावीशुं અને અત્યારે જે શુદ્ધ રેકોર્ડ આપણી આત્મામાં ભરાશે એ 5000 વર્ષ આવનાર 5000 વર્ષના પૂરા કલ્પ દરમિયાન ચાલશે। તો સારે કલ્પ का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हम सो देवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। हाँ, बाबा कहे छे सतयुगमां जईने तमने ए खबर नथी पड़वानी कि पछी कलयुग आववानुं छे। ए वखत तो बस खुश मौजमां प्रारब्ध भोगववानी छे। अगर यह पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकते। कारण कि ए खबर पड़ी जाए कि ते सुख भोगवीए छे पण पाछळ तो दुख आववानुं छे, तो ए सुखनी खुशी नहीं रहती। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, बाबा कहे छे आ ड्रामानी अंदर आ ईश्वरीय कायदो बनेलो छे। हरेक आत्मा ऊपर चढ़वानो पुरुषार्थ करे छे, एटला माटे आ राज राज ज रहे छे। परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। बाबा कहे छे कि पुरुषार्थी आत्माओनी खूबी कोने कहेवाय? कि जे पुरुषार्थी आत्माओं समयने ओळखीने पुरुषार्थ करी ले छे अने भविष्यनुं सुख जमा करी ले छे, ए छे पुरुषार्थनी खूबी। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होंगी। अच्छा, ओम शांति।